Hello students, welcome back to our online class with Best English School and with me, your SS teacher. So today in this video we would like to start our subject Social Science chapter 5 Natural Disasters students. Okay, so we won't waste our time and let's begin the chapter 5 Natural Disaster. On 12th March 2011, Krishna saw the pictures of a tsunami in the newspaper. After reaching school, she asked her class teacher, "Sir, I read the news about tsunami in the newspaper. How does a tsunami occur?" Sir replied, "Natural disasters are of two types, students. Okay? Disasters like earthquake, tsunami and volcano occurs due to the changes in the interior of the earth, whereas disasters like floods, cyclone, forest fires, drought, etc. occur due to the changes on the surface of the earth. So two types के natural disasters होते हैं students. फर्स्ट वन दैट हैव बीन ऑकर्ड इन द इंटीरियर, अंदर के भाग में, और सेकेंड जो सरफेस के ऊपर जो होता है. ये दो चीज़ें, दो नेचुरल डिज़ास्टर्स ऑक्युपाइड होते हैं. Okay, so firstly we will discuss about the earthquake students. The weak upper crust of earth suddenly experiences tremors either due to collision of plates or due to the tremendous pressure in the interior of the earth. Waves, tremors of earthquake originate from its hypocenter, which is deep down below the surface of the earth. Such sudden shaking or trembling is known as an earthquake. Earthquake waves are created from the epicenter during the process of an earthquake. Earthquake occurs due to internal disturbance in the earth. So earthquake, see, you can see in the picture 5.1 the disturbance on surface due to earthquake. So we will talk that one students right now. सी जो वीक होते अर्थ के जो अपर क्रस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रिमोर्स फैक्ट करते हैं, बिकॉज उसमें जो प्लेट्स होते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर द प्लेट्स, वो जो प्लेट्स होते हैं वो ट्रिमेंडियस प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते और वो शेक होता है. इक्वल होते हैं तो वो शेक हो जाते हैं. कभी एपीसेंटर की तरफ से भी हो सकता है, कभी हाइपोसेंटर की तरफ से भी वो शेकिंग होती है. तो जब हाइपोसेंटर की तरफ से शेक होती है तो स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा डीप होता है, और वो डीप सरफेस जो इंटीरियर सरफेस ऑफ द अर्थ होता है वो ट्रैम्बलिंग होता है, वो शेक होता है, वो मूव करता है. सो दैट्स वाई द सडन शेकिंग और ट्रैम्बलिंग इज़ नोन एज अर्थक्वेक. और अर्थक्वेक के जो वेव्स होते हैं वो एपीसेंटर मतलब एकदम बीच के भाग में ही वो शेक होता है, एंड उसी की वजह से अर्थक्वेक होता है. और ये अर्थक्वेक इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब अर्थ के अंदर के भाग मतलब ज़मीन के अंदर की जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के वजह से ही अर्थक्वेक ऑकर्स होता है. The waves of earthquake spread outward from the epicenter. The point on the surface of the earth exactly above the hypocenter focus is known as the epicenter. The intensity of the earthquake is felt the maximum around the epicenter. The intensity of the earthquake decreases as we move away from the epicenter. The effects of an earthquake depend on the intensity of the earthquake. We can measure the intensity of the earthquake and know its point of origin, hypocenter, with the help of a seismograph. There are three main reasons for the occurrence of an earthquake. First one is earthquake caused by volcanic eruption. Second one is earthquake caused by strike slip faults, and third one is earthquake caused by subduction in an active subduction zone. सो स्टूडेंट्स जो अर्थक्वेक के वेव्स होते हैं वो एपीसेंटर मतलब जो जहाँ पे वो शेक हुआ होता है, एपीसेंटर जो सेंटर में जो शेक हुआ होता है वहाँ से वो स्प्रेडिंग होता है. सो जो पॉइंट से सरफेस ऑफ द अर्थ में एग्जैक्टली शेकिंग होता है, जैसे हाइपोसेंटर फोकस होता है, उसको बोलते हैं एपी सेंटर स्टूडेंट्स. एपी सेंटर मतलब यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो, सी एपी सेंटर द होल लाइन
ये जो लाइन बताई गई है वो एक एपी सेंटर है, मतलब वहाँ से ही वो अर्थक्वेक शेक करता है स्टूडेंट्स. Sometimes what happen, then intensity of the earthquake is felt the maximum around the epicenter. मतलब जो इंटेंसिटी होती है, जो स्पीड होती है अर्थक्वेक की, कि वो इतने स्पीड में वो शेक किया है, वो सबसे ज़्यादा एपिसेंटर में ही होती है. द इफ़ेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी. मतलब अर्थक्वेक से क्या क्या हमें प्रॉब्लम होगी और क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके इंटेंसिटी की तरफ से ही पता चल सकता है. अब ज़्यादा ही इंटेंसिटी के होंगे अर्थक्वेक, फॉर एग्जांपल 7.5, तो ऑब्वियसली द होल बिल्डिंग विल फॉल अपार्ट. पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर सकती है. और वो थोड़ा सा ही हुआ, छोटा सा होगा 1.5 या इतने का, तो थोड़ी सी ज़्यादा शेक होगी एंड वी डजंट नोटिस दैट वन ऑल्सो. सो सी एंड how we can know the intensity. With the help of the seismograph we can know the intensity of the earthquake, students. Okay, see, there are three main reasons of the occurrence of an earthquake. First one is earthquake caused by volcanic eruption. कहीं पे volcanic eruptions होते हैं, आपको पता है ना, ज्वालामुखी. सो वो होगा तो earthquake होता है. देन earthquake caused by strike slip faults. मतलब जो एक शेकिंग सडक्शन होता है, मतलब वो उसकी जो प्लेटलेट्स होती है वो हिलती है खुद ब खुद, बिकॉज वी आर उनके अंदर में तो जो है तो है, पर उसके बाहर जो इतनी सारी चीज़ें, हम लोग, द एनिमल्स, उनका भार तो वही उठा रहे हैं ना. सो दैट्स वाई समटाइम्स इट्स स्पिल आउट. देन द थर्ड वन इज़ अर्थक्वेक कॉज्ड बाय सबडक्शन. मतलब कोई एक्टिव सबडक्शन जोन, या फिर हम लोग में कुछ खोदते हैं या कुछ बनाते हैं, तो उस टाइम में कोई कंस्ट्रक्शंस टाइम में कुछ इशू हो सकता है एंड उसके वजह से भी प्लेट्स ओवर होते हैं, स्टूडेंट्स. ओके, सी, द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6,371 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ सरफेस. मतलब इतना किलोमीटर सेंटर, जो सेंटर है, एपी सेंटर, वो इतना किलोमीटर दूर है हमारे सरफेस से. सो दिस वे वी टॉक्ड अबाउट द अर्थक्वेक. नाउ वी विल टॉक अबाउट द वॉल्केनो. वॉल्केनो refers to an opening in the earth's crust from which motion lava, rock fragments, ashes, dust and gases are ejected from below the earth surface. तो volcano refers, जो volcano कैसे होता है, जो earth के crust, you can see in the photo, लावा होते हैं, जो रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो एशेस, डस्ट और गैसेस बन के वो बाहर निकल जाते हैं. वो ज्वालामुखी अंदर वो बॉयल होता रहता है. उसकी ज्वालामुखी की एक भी बूंद आपके हाथ में गिर गई, सो दैट्स इनफ, यू विल बर्न आउट. वो इतना हॉट होता है, इट्स टू हॉट. सो वॉल्केनिक इरप्शंस ऑकर्स फॉर 4 रीज़न, 4 रीज़न की वजह से होता है. एक तो इंटीरियर सरफेस ऑफ द अर्थ में हाई टेम्परेचर ऑकर्ड होगा, देन ओनली, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ऑकर होगा, देन ओनली. देन सेकेंड वुड बी क्रिएशन ऑफ मैग्मा बनता है, जो रेड जो वॉल्केनो से बाहर निकलता है ना, यू कैन सी इन द एक्टिव वॉल्केनो पिक्चर, दैट इज़ मैग्मा. थर्ड वन इज़ क्रिएशन ऑफ गैसेस एंड वेपर. उससे गैसेस और वेपर, भाप भी क्रिएट होता है, उसके वजह से भी वॉल्केनो होता है. एंड राइजिंग ऑफ मैग्मा टूवर्ड्स अर्थ सरफेस. जो अर्थ सरफेस में मैग्मा बाहर निकलता है, उसके वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसकी टेम्परेचर, एंड दैट्स वाई दे फॉल अपार्ट फ्रॉम द वॉल्केनो माउंटेन. नाउ सी, the magma is pushed upwards by the gases lying under the magma. Secondly, the water percolating through the cracks and opening of weak rock surface turns into vapor. This vapor is full of pressure owing to lack of space and tries to come out with great force. This vapor also causes magma to rise upwards. The gases present in the magma reach near the surface of the earth.
and erupt with a high pressure in the form of lava, ash, gases, rock pieces of various shapes and size, etc. And this is known as a volcano. All these volcanic residuals come on the surface of earth and form a mountain-like structure. If the mountain of gases and vapor is more and the vent on the earth's surface is narrow, then the eruption is dangerous. But if the mountain of gases is less and the vent is broad and long, then the molten lava comes out slowly and spreads itself on the earth's surface. There are three types of volcanoes: active volcano, dormant volcano, extinct volcano. Volcanoes are found at various places in the world. There is only one active volcano in India, and that is in the island of Andaman and Nicobar Island. Volcanic eruption at any place or region leads to massive destruction in the local area. So what happens students? The magma, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, जो गैसेस होते हैं उसको मैग्मा बाहर निकालते, द गैसेस सब्सटेंसेस. देन द वाटर, जो पानी का भाग होता है पर्कुलेट, वो बॉयल हो के वो एक रॉक्स के तरफ से वेपर बन जाता है. और वो वेपर क्या करता है, वेपर का इतना प्रेशर होता है कि लैक ऑफ स्पेस नहीं मिलता है, तो वो ग्रेट फोर्स, एकदम बहुत ज़्यादा फोर्स के थ्रू वो बाहर निकल जाता है और मैग्मा राइज अप हो जाता है. यू कैन सी इन द एक्टिव वोल्केनो में जो मैग्मा बाहर निकल रहा है, दैट इज़ द राइजिंग वेपर पोर्शन. दैट्स वाई दे बॉइल्ड आउट एंड दे फॉल अपार्ट. उसमें जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं मैग्मा में, वो इतने हाई टेम्परेचर के होते हैं और इतने हाई प्रेशर से वो बाहर निकलते हैं कि वो बहुत दूर तक भी जा सकते. इट गोज़ फॉर फार. तो उसके कब्ज़े में, उसके एरिया में जो भी चीज़ें आएंगी, मतलब पत्थर, लावाज, एशेस, वो सब चीज़ें बॉयल होके उसके साथ मिक्स होके वो सबकी चीज़ें बर्न हो जाएगी. इट विल डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरी सब्सटेंसेस विच वुड कम नियर अ पार्ट ऑफ दैट मैग्मा एंड देयर शेप्स. और दिस इज़ नोन एज वॉल्केनो. तो ये जो वॉल्केनिक रेसिडुअल्स होते हैं हमारे अर्थ के सरफेस में, वो माउंटेन के अंदर से फॉर्म होता है. वो पहले से ही वैसा होता है, इसके वजह से वो बर्नड होते जाता है स्टूडेंट्स. तो इसमें क्या है, गैसेस और वेपर, ये दोनों का मिक्सचर बन के वो अर्थ सरफेस के नैरो प्रोडक्शन में आता है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है. इट इज़ वेरी डेंजरस स्टूडेंट्स. इफ़ द अमाउंट ऑफ गैसेज इज़ लेस, सोच लो गैसेज लेस है, कम है, तो वो बेंड ब्रॉड एंड लॉन्ग होगा, लंबा जाएगा और मोल्टन लावा स्लोली हर जगह पे स्प्रेड हो जाएगा स्टूडेंट्स. तो इस तरह से वॉल्केनो इरप्शन होता है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज: एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. सो हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो, वो भी अंडमान और निकोबार आइलैंड के वहाँ पे मिला जाता है. और जो एक्टिव वॉल्केनोज़ होते हैं वो जो एरिया में होते हैं वो एरिया को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि उसकी जो नॉइज़ेज़ होती है बहुत डेंजरस नॉइज़ेज़ होती है एंड दैट विल मेक यू हार्म अ लॉट. इफ़ द वॉल्केनो विल सडनली बर्स्ट आउट, तो उसके अगल बगल में जो भी एरिया है, विलेजेस कोई रहते होंगे, सो वो सब के सब ख़त्म. सो दैट्स वाई इट्स अ मैसिव डिस्ट्रक्शन इन द लोकल एरिया. लोकल एरिया में एक डर तो हमेशा रहता ही है. Volcanoes have certain benefits too. The fertility of land increases due to lava. The agricultural production is very good due to fertile land in Java and Sumatra. As it is made of lava, the potassium-rich soil from the volcanic residuals helps the farmers to obtain abundant crop production. The hot water springs in the areas of volcano have germ-killing property and that cures skin diseases. At a lower depth from surface at Earth, certain minerals like mercury, tungsten, tin plating, zinc, aluminium, etc. can be obtained easily due to volcano.
The lava that cools down inside the vent of extinct volcano turns it into diamonds and with the passage of time. The small rocks thrown out during the volcanic eruptions known as lapilli, which have been proved to be very useful as they can be molded easily. सो स्टूडेंट्स वॉल्केनोज़ में भी बेनिफिट्स होते हैं. उसकी जो फर्टिलिटी होती है लैंड की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. किसके वजह से? लावा के वजह से. तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत सही होता है वहाँ पे, क्योंकि उनकी जो एग्रीकल्चर एरिया होता है तो उसकी सॉइल बहुत फर्टाइल हो जाती है एंड इट विल बी वेरी यूज़फुल बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ लावा, राइट. सो इसमें रिच सॉइल हो जाता है क्योंकि वो पोटेशियम उसमें ज़्यादा होता है और जो चीज़ फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है क्रॉप्स प्रोडक्शन में. सो अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो वो इस एरिया के जितने भी जर्म्स होते हैं, जितने भी ख़राब जर्म्स होते हैं वो सबको क्लियर कर देते हैं, किल कर देते हैं और जो स्किन डिजीज़ेज़ होते हैं वो भी हट जाती है, वो भी कर देते हैं क्लियर. इसमें क्या होता है, एक और चीज़ है कि इसमें से जब वॉल्केनो इरप्ट होता है और उसमें से जो एक पत्थर या कुछ भी चीज़ें निकलती है उसको बोलते हैं टैपिली. वो टैपिली बोलते हैं और वो अभी भी ऐसा बोला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है, यूज़फुल रॉक है. छोटे छोटे रॉक्स में वो होते हैं. उससे क्या होता है कि वो जो रॉक होता है उसको हम लोग किसी भी चीज़ में मोल्ड कर सकते हैं, कोई भी शेप में, कोई भी चीज़ में हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं. और जब वॉल्केनो इरप्शन होता है सो we got a lot of minerals also when the volcano erupt. For example, mercury, tungsten and zinc, aluminum, etc. And that have been obtained easily due to volcano. Because of the volcano we can get these whole products, students. Okay, this one is all about the volcano. Now we will see the tsunami. You all have heard about this one because in the junior classes you all have learned about this one. Tsunami. Due to volcanic eruption or earthquake on the sea floor, high oceanic waves are created. They are known as tsunami. They are high and have unimaginable length. Their length is approximately 700 to 1600 kilometers. These waves travel with a great speed and force. By the time they reach the coast, they attain great height and power, which causes a great deal of destruction in the coastal regions. It was witnessed on 11th March 2011 in Japan. Strong and whirling winds also create big and strong waves. Once the storm gets over, these waves become tall with a high wavelength which can travel great distances. Such waves cause a great deal of destruction in the coastal regions. Hence, they are known as the destructive waves. At times, rock falls, ice falls or underwater landslides or slumps can generate displacement of water to create a tsunami. So students, tsunami क्या है? सुनामी एक वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है जैसे अर्थ में होता है, पर अर्थ में हमारे लैंड सरफेस में होता है अर्थक्वेक, राइट. बट सेम टू सेम पैटर्न दैट हैव बीन हैपेंड इन द अंडर द सी के अंदर में ये चीज़ होती है, उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं. अब वो सी के अंदर में एक प्लेटलेट शेक हुआ तो ऑब्वियसली पानी भी शेक होगा. सो पानी शेक होगा तो उसके बहुत ज़्यादा बड़े वेव्स होंगे. सो वो वेव्स ऑब्वियसली उनके जो एरिया है उससे पार कर जाएंगे और बहुत हाई टाइड आएगी, बहुत ही स्पीड में. सो इसके वजह से वो पूरे की पूरी पानी जो एरिया होता है उससे बाहर चला जाता है और वो पूरे के पूरे एरिया को डिज़ास्टर कर देता है. इट डिस्ट्रॉयज़ ऑल दैट थिंग विच हैव बीन नियरहुड. मतलब सब कुछ चीज़ें अपने साथ बहा ले जाता है. अराउंड इसके 700 to 1600 किलोमीटर्स की लेंथ होती है. मतलब इतनी लंबी ऊंची वेव्स होती है इनकी.
एंड बाय द टाइम दे रीच द कोस्ट तक होते तब तो जब तक वो अपने किनारे तक पहुँचते तब तक तो उनकी हाइट और ज़्यादा बढ़ जाती है स्टूडेंट्स। और ये चीज़ एक्चुअली 11 मार्च को जापान में सुनामी आई थी उसकी है, और उस टाइम वो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ था। वी कांट think about the disaster that have been occupied on that particular day. In India we have got it in Rameshwaram, Kanyakumari. These all are the seaways, the last end of the India, and we have seen a lot of disaster on that particular area also. सो इसमें जो भी चीज़ें आती हैं लाइक रॉक फॉल्स होते, आइस फॉल्स होते, अंडर वाटर लाइन स्लाइसेस, ये सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं वाटर के, और वो चीज़ क्या करते हैं, सुनामी आती है फिर। नाउ यू कैन आस्क मी अबाउट द व्हाई द टी इज़ साइलेंट। So T is silent because it is having a tsunami pronunciation. We can't pronounce T tsunami. No, that is wrong. The T is silent in the word tsunami. That's why we pronounce the word tsunami. Okay, students? Now we will see the flood. Flood. The flow of excess of water in a river is called flood. Flood occurs due to two reasons: heavy rain in the upper course of a river, and if a dam or river breaks, flood occurs in the low-lying areas on the river bank. So students, फ्लड कैसे होता है? बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से फ्लड होता है, और इसमें से दो रीज़न ये भी है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई हो तो फ्लड हो सकता है, और कोई डैम या कोई रिवर ब्रेक हो गया हो, टूट गया हो, तो फिर जो बांध बची होती है वहाँ से निकल जाएगा और वो सब चीज़ें पानी बाहर आ जाएगा एरियाज़ में, और उसको हम लोग बोलते हैं फ्लड स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी विल सी फेमाइन। फेमाइन मतलब ड्रॉट यू कैन से। Scanty rainfall leads to the drying up of the groundwater and shortage of food and water. This condition is known as famine. The condition of famine occurs in case of scanty rainfall or no rainfall for 2 to 3 years successively. The possibility of famine is less if we plant more trees. So students, famine means क्या है कि वो पर्टिकुलर एरिया वहाँ पे 2 या 3 सालों तक बारिश ही नहीं हुई है, वहाँ पे बारिश ही नहीं हुई है और पानी का शॉर्टेज है, खाने का शॉर्टेज है, उस पर्टिकुलर एरिया को, उस टाइम को हम लोग फेमाइन बोलते हैं। यू कैन से इन द अदर वर्ड ड्रॉट ऑल्सो। तो 2-3 सालों तक वहाँ पे पानी ही नहीं आया है या फिर बहुत ही कम बारिश हुई है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से फेमाइन होगी, क्योंकि पानी ही नहीं है तो पीने का पानी नहीं, खाने का पानी नहीं स्टूडेंट्स, राइट। और ये एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स बहुत कम होते हैं। जहाँ ज़्यादा प्लांट्स होंगे वहाँ पे बारिश ऑब्वियसली होगी ज़्यादा। Now we will see about the cyclone. The simple meaning of cyclone is air which blows at a great speed. It can be called a storm or whirlwind. The coastal areas of India experience cyclone every year. The eastern coast especially experiences it every year. The adjacent regions also feel the effects of cyclones when it is at its highest intensity. However, these winds affect a limited area or a limited period of time only. So student, साइक्लोन कब एक बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में हवा चलती है, बहुत ज़्यादा स्पीड में, एट अ ग्रेट स्पीड, एंड स्टॉर्म आती है, बारिश होती है, हवा चलती है, स्टॉर्म आती है, और वो कोस्टल एरियाज़, इंडिया के कोस्टल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा सुनामी इफ़ेक्ट होता है हर साल, और सबसे ज़्यादा ईस्टर्न कोस्ट एरियाज़ में ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है सुनामी को।
सो द एडजेसेंट रीजन्स ऑल्सो फील द इफ़ेक्ट्स। तो जो बाहरी बहुत सारी जगहों में हमेशा सुनामी आती ही रहती है, सुनामी नहीं साइक्लोन आते ही रहती है, और उस जब वो आता है तब उसका बहुत हाई इंटेंसिटी होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में वो साइक्लोन आता है। तो हवा भी ज़्यादा होगी, हवा ज़्यादा होंगी तो हमारे जो भी चीज़ें हैं वो सारे वॉश आउट होंगे, सबकी चीज़ें टूट फूटने लग सकते हैं। कहीं कहीं तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जब साइक्लोन आया है तो पेड़, जो बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं, वो भी निकल गए, वो भी टूट गए हैं, इतने इंटेंसिटी स्पीड में वो हवा चलती है। तो इसको बोलते हैं साइक्लोन। बारिश भी होना, हवा भी चलना, खूब बारिश हवा, ये दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोल सकते हैं साइक्लोन। स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन द पिक्चर ओवर हेयर, एंड इफ़ यू हैव योर टेक्स्ट बुक सो यू कैन लुक दैट वन ऑल्सो। नाउ सी, we will talk about forest fire. Friction between dry branches of trees and other factors cause forest fire. It causes a great amount of damage to the forest resources. So students, forest fire क्या है? जो ड्राई ब्रांचेस में आग लग जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप हुई तो जो ड्राई ब्रांचेस होते हैं उसमें आग लग जा सकती है, और उसके वजह से पूरे के पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है। तो ये भी एक नेचुरल डिज़ास्टर में ही आता है स्टूडेंट्स, एंड इसका बहुत बड़ा डैमेज फॉरेस्ट रिसोर्सेज में हो जाता है। ओके, नाउ वी विल सी द लैंड स्लाइड। The sliding of large mass of rock material, soil, etc. down the side of a mountain or cliff is termed as landslide. Two factors cause landslide: excessive rainfall or an earthquake. For example, in the rainy season, the railway transportation in Konkan gets obstructed due to landslides. लैंडस्लाइड्स कैसे होती है स्टूडेंट्स? लैंडस्लाइड्स होती है कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, रॉक मटेरियल्स होते हैं, सॉइल होते हैं, वो धंस जाते हैं, वो अपने एरिया से धंस जाते हैं, निकल जाते हैं। यू ऑल हैव सीन द डिज़ास्टर विच हैव बीन ऑक्यूपाइड इन द उत्तराखंड, राइट? बहुत ज़्यादा बारिश के वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गए थे, एंड जो रोड है वो ही स्लाइड हो गया, लैंड स्लाइड हो गया, तो दोनों तरफ के लोग वहाँ पे फंस गए थे, बिकॉज हाउ कुड दे कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट स्टूडेंट्स? सो दैट इज़ कॉल्ड अ लैंड स्लाइड। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो ज़्यादा बारिश की वजह से हो सकता है या फिर अर्थक्वेक के वजह से हो सकता है। जैसे रेनी सीज़न में एक बार ऐसा हुआ था कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन एक कॉनकन करके जगह है, वहाँ जा रहे थे और रेलवे के बीच में ही देखा उन्होंने कि लैंडस्लाइड हो गया है। सो देन आफ्टरवर्ड्स दे कांट गो फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड स्टूडेंट्स। ओके, so this one is all about the natural disaster. So our chapter 5 is now completed whole about the natural disaster students. Okay, so I will make you write the question answers in the group below there, and I will see you in the next video with the next chapter. Till there, stay home, stay safe. With the help of this line, I would like to pack up. And yeah students, like, share and subscribe my channel students. Okay, Best English School. Bye bye and have a nice day students.